students, in the today lecture we will look at what are the component of network virtualization and what are the characteristics of traffic and what are the features of the component of network virtualization. So first of all, we have seen that virtual network is made by the hypervisor, and it is not a physical entity, it is a logical entity which is created either by a hypervisor uh, software's hypervisor functionality or either by the switch operating system. So in virtual network all the things are virtual, like here. So these all part of our virtual network and these all part of our physical network. So in virtual switch we have a virtual NIC. It is similar to our physical NIC, and that it has also a MAC address, and basically it is used to transfer data from VM to virtual switch or receive data from virtual switch to the VM. Virtual HB, host bus adapter. Basically host bus adapter is used to used to send or receive storage related input output. So this is basically allowed to VM to access the LUN or FCRDM disk. Virtual switch, it is a virtual, it is not physical switch. So it is basically layer 2 switch and it has the same functionality as we have a physical switch. It also maintains the table between the MAC between the port address and the MAC address, and its work is it transfer the data from VM and hypervisor to the physical server, and it also receive the data. This is the physical thing. So we have a physical NIC, HBA and CNA. So physical NIC is used to connect a virtual switch to the physical switch. Host bus adapter, that is a physical, so over physical we can make a virtual switch, and it is used to transfer the storage related traffic. CNA, converged network adapter, it is a combination of NIC and HBA. Then we have a physical switch. So physical switch or router, it is a layer 2 device and it support Ethernet, FC और iSCSI और FCOE सारे तरह के फ्रेम भेजने के काम आता है, और ये कनेक्ट क्या करता है, फिजिकल टू फिजिकल सर्वर और फिजिकल टू स्टोरेज सर्वर को कनेक्ट करने के काम आता है. अब इस एग्जांपल में हमने ये बताया है कि हमारे कौन कौन से ट्रैफिक होते हैं और कैसे कनेक्ट होता है. तो सबसे पहले यहाँ पर है PNIC, दैट इज़ फिजिकल नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. इट इज़ यूज टू कनेक्ट वर्चुअल स्विच एंड फिजिकल स्विच. Then our VM will generate a different kind of a frame. So this frame are here we are saying the traffic. So one type of traffic which is generated by VM, it will go through the virtual switch. Then our hypervisor kernel will also generate a traffic, and that traffic is categorized as a management traffic, IP storage, मतलब इन स्टोरेज से कुछ रीड राइट करना हो या VM माइग्रेशन से रिलेटेड. तो ये तीनों इन्फॉर्मेशन जो कि हाइपरवाइज़र कर्नल जनरेट करता है वो भी आपके वर्चुअल स्विच के थ्रू जाएगी, और वर्चुअल स्विच किससे कनेक्टेड है, फिज़िकल नेटवर्क से. तो आपका जो है फिज़िकल नेटवर्क पर ये चारों ट्रैफिक यहाँ पर जाता है. ठीक है. तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि आपका जो ये ट्रैफिक है या ये जो वर्चुअल स्विच है ये ओवरलोडेड हो जाते हैं. तो इसको अंडरलोड करने के लिए हमने नेक्स्ट टोपोलॉजी बनाई है ये वाली. तो इसमें हमने क्या करा, स्टोरेज रिलेटेड जो भी फ्रेम्स है वो यहाँ पर हम इसके थ्रू यहाँ पर भेजेंगे, iSCSI और FCHBA होस्ट बस अडेप्टर. तो नाउ क्या होगा कि हमारा जो पहले वाला जो डायग्राम था वो सिमिलर ही है, ओनली यहाँ पर क्या होगा कि ये जो स्टोरेज वाला ट्रैफिक जो पहले हमारा ऊपर था वो अब अलग हो गया. तो इससे फ़ायदा क्या हो गया, थोड़ा फास्ट हो गया. ठीक है. द नेक्स्ट इज़
हम क्या कर सकते हैं, तो हमने पहला तो सिंपल एक ही निक लिया, दूसरे में हमने निक लिया और HBA लिया, अब तीसरे में हम CNA ले लिया, कन्वर्ज नेटवर्क अडेप्टर। अब हम यहाँ पर हमारा तीनों ट्रैफिक कंबाइन हो गया, तीनों यहीं से जाएगा। अब कन्वर्ज नेटवर्क अडेप्टर का काम है सेग्रीगेट करेगा कि कौन सा ट्रैफिक ईथरनेट ट्रैफिक है और कौन सा ट्रैफिक स्टोरेज ट्रैफिक है। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ कनेक्शन कैन बी मेड। नाउ वी विल लुक एट व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ और वर्चुअल नेटवर्क। तो पहला कंपोनेंट है वर्चुअल निक, फिजिकल निक नहीं है। तो इसका काम क्या है कि VM2 वर्चुअल स्विच को कनेक्ट करेगा और जो भी फ्रेम इसके पास आएंगे उनको फॉरवर्ड करेगा कहाँ पर, फिज़िकल निक पर। एंड इस वर्चुअल निक में खुद का मैक एड्रेस और IP एड्रेस होता है, जो किसके द्वारा किसके द्वारा दिया होता है, हाइपरवाइज़र के द्वारा। तो हाइपरवाइज़र के द्वारा देते हैं और इसका काम सिमिलर टू फिज़िकल निक होता है। अब होस्ट बस अडेप्टर, वर्चुअल होस्ट बस अडेप्टर तो किस पर बनेगा, फिज़िकल होस्ट बस अडेप्टर पे बनेगा। इसमें क्या होता है, वर्चुअल होस्ट बस अडेप्टर में हमारा पास जो N पोर्ट्स होते हैं जिसको हम कनेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, तो उस पर हम N पोर्ट पर वर्चुअल N पोर्ट बना लेते हैं और उसका काम यही होता है कि ट्रांसफ़र करे स्टोरेज रिलेटेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम VM टू द स्टोरेज। देन वी कम टू द वर्चुअल स्विच। सो वर्चुअल स्विच में क्या है, बेसिकली लेयर 2 स्विच है, इथरनेट से रिलेटेड काम करता है। और ये कौन कौन से ट्रैफिक हमारे को ट्रांसफ़र करता है कि VM2 फिज़िकल नेटवर्क को ट्रैफिक को ट्रांसफ़र करेगा और हाइपरवाइज़र से कर्नल से ये हमारे तीनों तरह के ट्रैफिक्स हो सकते हैं और VM2 VM ट्रांसफ़र करेगा। और किसके द्वारा क्रिएटेड होता है, हाइपरवाइज़र के द्वारा क्रिएटेड होता है। देन वी कम टू द वर्चुअल स्विच। ऐसा अब हम वर्चुअल स्विच की डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं। तो जैसा हमने इससे पहले वाले यहाँ वाले फिगर में देखा था, ये यहाँ पर, तो यहाँ पर एक ही फिज़िकल निक था। इफ़ वी वांट वी कैन हैव मोर देन वन निक हेयर। इफ़ देर इज़ अ मोर देन वन निक, तो बेनिफिट इज़ it performs the load balancing and failover. That is the advantage of having more than one physical NIC. Then it may possible that our virtual switch is connected to VM. It is not connected to physical LAN, physical NIC. तो बेसिकली इसकी ज़रूरत हमें जब पड़ती है कि जब हम चाहते हैं कि हमारा जो ये VM है इट रिक्वायर्स द यूटिलिटी ऑफ अनदर VM। तो इस केस में कह रहे हैं कि मेरी यहाँ पर एक एप्लीकेशन है और ये VM है जो मेरे को फायरवॉल रिलेटेड फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो आई विल क्रिएट अ वर्चुअल स्विच दैट विल कनेक्ट टू VM डायरेक्टली। दो VM को डायरेक्टली मतलब दो VM को वर्चुअल स्विच के थ्रू कनेक्ट करेगा। ठीक है, देन ऐसा भी हो सकता है कि हमारा जो है वर्चुअल स्विचेस का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं हो बिटवीन द वर्चुअल स्विचेस। तो इस केस में फ्रेम इज ट्रांसफर बिटवीन द वर्चुअल स्विच वाया VM एंड फिजिकल निक इज़ नॉट शेयर्ड बिटवीन द वर्चुअल स्विचेस। देन वी कम टू द कि वर्चुअल स्विच होता है उसकी हमारी फिज़िकली वो कैसे दिखता है। तो उसमें हमारा हाइपरवाइज़र कर्नल पोर्ट होता है जो कि हाइपरवाइज़र को कनेक्ट करेगा। हमारे फिज़िकल पोर्ट होते हैं उनको हम ग्रुप बना सकते हैं बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट। एंड हमारे पास अपलिंक पोर्ट होते हैं जो कि हमारे को निक से कनेक्शन करने के काम आता है। तो इट इज़ सिमिलर टू आवर फिज़िकल स्विच विच यू हैव सीन इन द योर नेटवर्किंग लैब। तो अपलिंक का क्या काम होता है, प्रोवाइड कनेक्शन टू द फिज़िकल निक। और VM पोर्ट तो होता है VM को कनेक्ट करने के लिए। हाइपरवाइज़र कर्नल पोर्ट क्या होगा, हाइपरवाइज़र को कनेक्ट करने के काम आएगा। अब अभी तक हमने देखा कि हमारे डिफरेंट फिज़िकल सर्वर पर हम एक वर्चुअल स्विच बनाते हैं जैसे इस एग्जांपल में भी दिया है। तो यहाँ पर डिसएडवांटेज क्या है कि हर वर्चुअल स्विच को आपको एक पर्टिकुलर पर्सन को ही कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा या मैनेज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इन वर्चुअल स्विच को कंबाइन भी कर सकते हैं और वो कॉम्बिनेशन हमारा कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटेड वर्चुअल स्विच। दो फिज़िकल सर्वर पर दो वर्चुअल स्विच थे उनको हमने कंबाइन कर लिया और वो कॉम्बिनेशन कहलाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड वर्चुअल स्विच।
और ये बेसिकली और तो सारी कॉन्फ़िगरेशन हमारी सेम ही है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि हमारे पास एक सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर आ जाएगा, जिस सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर से हम नेटवर्क पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर सकेंगे सेंट्रलाइज यूज ड्यूरिंग द VM माइग्रेशन। दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड वर्चुअल स्विच। देन हम आते हैं फिज़िकल नेटवर्क कंपोनेंट में निक आप जानते हो कि ये बेसिकली इट इज़ सिमिलर टू आवर फिज़िकल निक, और इस केस में हमारे जो निक होता है इसके पास भी IP एड्रेस और मैक एड्रेस होता है, और वो हमारा हाइपरवाइज़र गिवन होता है। और निक इज़ दिस फिज़िकल निक इज़ यूज्ड टू कनेक्ट द वर्चुअल स्विच टू द फिज़िकल स्विच। अब आता है HBA एंड CNA। तो बेसिकली HBA का क्या काम होता है कि स्टोरेज रिलेटेड जो आपका ईथरनेट फ्रेम है उसको आईस्कजी फ्रेम में कन्वर्ट कर दो, या स्कजी फ्रेम में कन्वर्ट कर दो, या FC फ्रेम में कन्वर्ट कर दो। तो होस्ट बस अडेप्टर इसको कन्वर्जन का काम करता है। और अगर मेरे पास होस्ट बस अडेप्टर नहीं होगा तो ये वाला काम कौन करेगा? इस जो भी मेरी फ्रेम से रिक्वेस्ट आई है इनपुट आउटपुट की, हाइपरवाइज़र करेगा। तो इस मीन्स हाइपरवाइज़र ओवरलोडेड हो जाता है। तो इसलिए हम आईस्कजी HBA यूज़ करते हैं। तो इसका काम यही होता है कि बेसिकली इट कन्वर्ट्स द फ्रेम इनटू द आईस्कजी फ्रेम। सिमिलरली जो हमारा फाइबर चैनल HBA इसका भी यही काम होता है कि आपकी जो स्कजी से रिलेटेड या स्टोरेज से रिलेटेड जो भी IO इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट आई है इसको कन्वर्ट कर दे फाइबर चैनल स्टोरेज सिस्टम में। अदरवाइज़ ये काम हाइपरवाइज़र का करना पड़ेगा। और CNA मतलब दोनों का काम कंबाइन कर लेता है, तो दैट इज़ द एडवांटेज। तो देन इट CNA विल लुक इट वेदर दिस ट्रैफिक इज़ अ निक ट्रैफिक और होस्ट बस अडेप्टर की ट्रैफिक है। So this is all about our today class. So in the today class we have seen what are the component of a virtual network and what kind of traffics, and in the next class we will look at VLAN and vSAN. Thank you.